पूरे प्रेगनेंसी में ना मिनिमम 10 केजीज वेट गेन होता है. ओके ओके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ 1 केजी गेन होता है एंड सेकेंड एंड थर्ड में इट गोज टू अराउंड 333 एंड ऑल दैट Okay, स्टफ. okay. या तो अगर उससे ज़्यादा वेट गेन होने लगे तो फिर चिंता करने की बात है. Welcome, Dr. Snail, to Zero Harm. How are you doing nowadays? I'm really good and thank you so much for inviting me. Pleasure is all ours. We have a wonderful series going on, Wellness with Zero Harm, and in today's podcast, our listeners would like to know more about women wellness. So, in women wellness, the first thing which comes to any of, like, we have a lot of reviews and a lot of people call us to ask. The first thing what people ask is about the cycles, and Yeah. the story of the cycle starts from the menstruation. So, would you please throw some light on exactly what is menstruation? How does it start? Menstruation is basically shedding of endometrial lining. ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है when she is a teenage girl, Okay. usually around 12 to 16 years Okay. of her life. पहले उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, Okay. लाइक डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट, हैविंग एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर. आफ्टर दैट शी गेट्स अ फर्स्ट पीरियड. तो जब जैसे इन दिस स्टेज क्या होता है कि दे आर स्टिल यंग, वेरी यंग, Yeah. दे डोंट, कोई अपनी खुद की केयर नहीं ले पाता, मतलब दे ऑल दी गर्ल्स आर बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स. या पेरेंट्स हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स. सो उस समय उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, या फिर पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उस एज में, व्हेन अ फीमेल, व्हेन अ गर्ल इज स्टार्टिंग हर पीरियड्स और स्टार्टिंग हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स? सबसे बेस्ट है उनका जंक फूड अवॉइड करो. This is for the जितना हो parents. सके, यस, जितना हो सके उतना जंक फूड अवॉइड करो. बाकी नेचुरली जो घर पे बनाया हुआ खाना रहता है वो हेल्दी होता है, वो उतना खाएंगे उतना भी उनके लिए काफ़ी है. जस्ट अवॉइड जंक फूड. ओके Yeah. ओके. और जो बहुत क्या होता है, मतलब पेरेंट्स इर्रेगुलर पीरियड्स को लेके दे आर लिटिल बिट, बिकॉज लॉट ऑफ पीयर्स डोंट नो कि हाउ द पीरियड साइकिल गोज इन द अर्ली मेंस्ट्रुएशन. Yeah. So, how regular are they? I mean, they are regular, or like there's some kind of gap in between the periods? See, during initial phases of her life, like when her period starts, पहले 2 से 3 साल तक periods can be regular and irregular also. Okay. या किसी किसी को रेगुलर पीरियड आना स्टार्ट होते हैं, किसी किसी को 2 या 3 महीने लग जाते हैं. उतना इंटरवल उनमें होता है विच इज़ नेचुरल. दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अनलेस द ब्लीडिंग इज़ हैवी. Okay. या So how? Okay, this I'll just stick to this point. So when you said unless the bleeding is heavy, is there any parameter where a person, a female or a girl, can understand whether what is heavy bleeding versus what is normal bleeding, or what is very less bleeding? या सी यूजुअली menstruating phase is for about 5 days Okay. to 8 days. अगर उन्हें ब्लीडिंग 8 days से ज़्यादा हो then we can consider that she is having heavy menstrual bleeding. So, doctor, lot of people tell me कि heavy bleeding is there, normal bleeding is there. So, आप क्या हमारे listeners को explain कर पाओगे कि what is heavy bleeding, what is normal bleeding? See, normal bleeding is जब menstruation 3 days to 8 days तक अगर किसी को bleed हो रहा हो then it is considered as normal bleeding. Okay. If 8 days से ज़्यादा exceed हुआ then we consider as heavy bleeding. और एक और पैरामीटर है जहाँ पे हम क्वांटिफाई करते हैं, हाँ. जहाँ पे 80 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो then we consider as heavy menstrual bleeding. So this 80 ml is in a day or it's in the complete cycle? Complete cycle. Okay. Average is around 40 ml, 35 to 40 ml. During the entire cycle? Entire cycle. Okay. लेकिन obviously we cannot count it, right? Yes. Yeah. So दिन में 3 to 4 pads, 4 to 5 pads is considered as heavy menstrual bleeding. Okay. 3 to 4 pads one day? Yeah. Okay. Yeah. Okay. And then you'll have 5 to 8 days is normal? Yeah.
And anything above 8 days It's heavy menstrual bleeding. is heavy menstrual period. So if suppose there is a case of heavy menstrual period, Yeah. then in that scenario, if I am facing, suppose I am a woman and I am facing that issue, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डॉक्टर के पास immediately जाना चाहिए, या फिर how should I understand this phenomenon in my body? See, अगर एक साइकिल में ऐसा होता है Okay, देन इट्स फाइन. okay, अगर आपके पूरे साल में कोई एक साइकिल स्किप भी हो जाए या कोई एक साइकिल जहाँ पे आपको ब्लीडिंग कम भी हो या ज़्यादा भी हो, देन इट्स टोटली फाइन. okay, यही चीज़ अगर रिपीटेडली हो, 2 साइकिल्स, 3 साइकिल, 4 साइकिल्स, अगर ये रिपीटेडली हो, देन यू हैव टू गो एंड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर. ओके Yeah. ओके. सो वी जैसे ये सारी चीज़ें हैं, बिकॉज हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुएशन. Yeah. पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए. सारे जो गर्ल्स या सारे जो लड़कियां हैं, दे शुड हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, नॉट अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सो मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस मोर अबाउट what is active lifestyle, what is sedentary lifestyle, so that their health will be good? See, sedentary lifestyle is like you go wherever and you just sit and work. Okay. तो ये ज़्यादा कॉमन तो ऑब्वियसली अभी आईटी सेक्टर में तो देखा जाता है, लेकिन अभी स्कूल्स में कैसा हुआ है, इट्स फाइन, स्कूल में जाते हो, बैठते हो, लेक्चर्स होते हैं, इट्स फाइन, लेकिन वो घर आते हैं तो भी सीधा ट्यूशन्स के लिए भाग जाते हैं. Okay. Okay. तो उनका फिजिकल एक्टिविटी इज़ लाइक वेरी लेस. दे सिट ऑन फोन्स, लर्निंग एप्स के चक्कर में दे स्टडी ऑन फोन्स ओनली. तो यहाँ पे उनको फिजिकल एक्टिविटी में डालना बहुत ज़रूरी है. Okay. फिर चाहे वो फुटबॉल हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो. Okay. डेली का योगा भी इज़ ऑल्सो फाइन. So in this, like when we are talking about the teen girls, the cycles which are not regular, then there are like nowadays, in the metro cities, both the parents have to work Yeah. to maintain their lifestyle, and there are a lot of tight schedules. So in this tight schedules, and parents like us find it difficult to give us time to the kids. So what kind of nutrition would you recommend to the parents, basically, so that they can take care of their kids, saying that at least they can rely on some diet plan and other nutrition thing? So what kind of nutrition would you suggest to the parents so that their teen girls can remain happy? सी, न्यूट्रिशन पे अगर बात हो तो जैसे मैंने पहले बताया, जस्ट अवॉइड जंक फूड. Okay. हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर का बनाया हुआ पिज़्ज़ा हेल्दी है. अच्छा. ओके, जो रोटी सब्जी है, जो डेली डाइट जो परंपरा से चलती है, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. दे कैन ऐड ऑन ड्राई फ्रूट्स. Okay. या दैट वुड बी ग्रेट. इवन डेट्स. Okay. Yeah, dates plays a important role because it has estrogenic properties also. Okay. Yeah, and but सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट खाना खा के हेल्दी साइकिल्स आएंगे ऐसा तो नहीं होगा. ओके. Yeah. सो एक यहाँ पे मैं समझना चाहूँगा, आपने इस्ट्रोजन बोला, ये इस्ट्रोजन होता क्या है? जैसे जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो एक हार्मोन है, वैसे इस्ट्रोजन होता क्या है? ईस्ट्रोजन बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है जो ज़्यादा क्वांटिटी में फीमेल्स में पाए जाते हैं, टू अ लेसर एक्सटेंड इन मेल्स. दैट्स इट. तो ये हार्मोन बेसिकली ओवरी से सिक्रीट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वुमन टू बी अ वुमन. ओके. ओके. सो जैसे आपने कुछ समय पहले कहा कि आजकल के फूड में, या फिर जैसे घर का बनाया हुआ पिज़्ज़ा भी हेल्दी नहीं होता. तो और घर का जो दाल रोटी है वो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि जो आपका डेली डाइट है, जो कोई हमारे घर में चल रहा है, दाल रोटी चावल घी वगैरह, वो आपको पूरा पोषण ना दे पाए, या फिर जो न्यूट्रिशन या फिर जो कुछ बॉडी को चाहिए. सो यू बीन फ्रॉम आयुर्वेदा, ऐसे कोई प्लांट्स हैं क्या जहाँ पे आप, जो प्लांट जैसे होते हैं, जैसे कोई प्लांट हो कि जो आपको वो जो एस्ट्रोजन तैयार रहने के लिए, उसका बैलेंस होने के लिए, मेंटेन होने के लिए आपको वो हेल्प करे, ऐसे कोई प्लांट्स अगर आप हमें सजेस्ट करें? जी बिल्कुल. शतावरी मैं बहुत बिलीव करती हूँ. शतावरी को WHO ने भी बहुत रिकमेंड किया है. इट्स अ यूट्राइन टॉनिक, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो शतावरी तो आप मोस्टली ले ही सकते हो. शतावरी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो. ओके. अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड सच सप्लीमेंट्स. Okay. You mentioned something about WHO. So when you say WHO has recommended it, Shatavari,
तो on what, like, are there some kind of studies which WHO conducts, or it's WHO किस बेसिस पे ये रिकमेंड करता है या जी फिर? बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। हाँ हाँ. क्लिनिकल ट्रायल्स पे जो रिजल्ट्स आते हैं उस बेसिस पे रिसर्च पेपर लिखा जाता है, एंड Okay. ऑन दैट स्टैटिस्टिकल स्टडीज फाइंडिंग्स देन हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये सच में काम करता है। लिखा हुआ तो बहुत है, लेकिन जस्ट प्रूफ धीरे धीरे हो रहा है, तो धीरे धीरे वो हम रेकमेंड कर रहे हैं। So I think now our audience got a good understanding about how to take care of teenage, and what kind of parents, what kind of nutrition, what kind of food they should give. So now we have a good understanding. So now when a girl is moving from teenage and she's going to the adulthood, उस समय बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उस समय हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, और बेसिकली जैसे जो आपने कहा कि स्टार्टिंग में इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, तो उस समय क्या होता है बॉडी में, कैसे क्या क्या चेंज होते हैं? सी पहले 1-2 साल या मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स तक इरेगुलर पीरियड्स होना दैट इज़ नॉर्मल। ओके. आफ्टर दैट शी गेट्स हर रेगुलर पीरियड्स। जब पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो हार्मोनल बैलेंस बनाए रहता है, बट ड्यूरिंग दिस स्टेज जितना उसके फिजिकल डेवलपमेंट होती है उतना उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। उनमें वो मेच्योरिटी आने लगती है। ओके. या एंड मोर ओवर जब हार्मोनल्स बैलेंस स्टेट में रहते हैं तब उन्हें एक्ने जैसे प्रॉब्लम के इश्यूज नहीं होते हैं। ओके. तो मेन इशू इस एज में होता है एक्ने का। अच्छा. जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जब एंड्रोजन्स जो कि मेल हार्मोन्स है, जो फीमेल्स में भी होते हैं लेकिन टू Okay. स्मॉल एक्सटेंट। ओके. या तो एट दैट पॉइंट कुछ कुछ गर्ल्स है जो ये बहुत फेस करती है एक्ने प्रॉब्लम। सो एक्नी का वैसे देखा जाए तो, लाइक, बिकॉज एक्नी इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कीवर्ड विच इज सर्च ऑन द इंटरनेट कि Yeah. एक्नी रिमूव करना है, एंड मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप जो है इट्स बिटवीन लाइक इन द हु आर बेसिकली फ्रॉम टर्निंग फ्रॉम द टीन एज टू द एडल्टहुड। तो एक्नी जो कह रहे हैं, एक्नी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली वो आपके स्किन इश्यूज नहीं है, ऑयली स्किन वगैरह, इट्स मोर रिलेटेड टू योर हार्मोनल इश्यूज। hormonal yes, issue. yes, yes. So anybody who has acne first should not consider going to like But only during teen period, huh? okay, Yeah, okay, only yeah. during the teen Yeah, period they yeah, should yeah. first consider of having like looking at Hormonal their imbalance, hormonal balances yes, and all, and yes, for a yes, hormonal yes, balance. So what do you suggest, like what kind of activities, or what kind of, again I'm coming back to the same nutrition thing, but what kind of things would you suggest for them to understand कि this is due to the hormonal changes and how should they control it? सी फर्स्ट जैसे ही एक्ने आते हैं तुरंत भागते हैं और कोई क्रीम लेके आते हैं। Correct, that's very Yeah. true, that's very true. सो वो ना करे बिकॉज इट्स यूजलेस। अब कितना भी क्रीम लगाओ आपके हार्मोन्स के इशू की वजह से वो कोई ठीक नहीं होने वाला है। बेसिकली आपका रूट कॉज ही अलग है. हाँ, तो क्रीम ना लाओ वही बहुत अच्छी बात है। वो आएगा पिंपल्स और वो अपने आप चला भी जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। Okay. या And there a lot of girls do worry because maybe that's the new phase of life and people are interacting with a lot of people and they find that is they need to look beautiful and all Yes, stuff. yes, Yeah. yes, yes. But it's fine. so first thing you should understand your hormonal. तो ये hormonal balance रखने के लिए अगर मुझे पिंपल आता है which I know is gonna कि हो सकता है, मतलब I am if I'm in that phase कि कुछ 5-6 दिनों बाद नीचे मतलब वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस समय कोई ऐसा कोई सप्लीमेंट है, जैसे कोई आपने कुछ बोला, या फिर ऐसा कोई रूट है, आई मीन कोई प्लांट है जिसका कुछ दे शुड कंज्यूम टू मैनेज दी हॉर्मोन्स? नहीं नहीं नहीं, इट्स कोई ज़रूरत नहीं है Okay, उसके it's लिए। natural. We Yeah, don't it's need to worry natural. much. We don't need to Yeah, think yeah, too yeah, much yeah. about it. Yeah, it's That- completely fine. Okay, but we have to just take care of your cycles are coming on time. Yeah, that is Okay. the most important And in thing. that case, what happens in when the girl from teenage to adulthood, at that time there will be a lot of aspiration, like they'll have tight schedule for the colleges, Yeah, they'll have exams, they'll have Yeah. pressure, they want to achieve something. yeah. So at that point of time, there's a little bit of stress on everybody. उस स्ट्रेस का कोई रिलेशन होता है पीरियड्स पे, मतलब कुछ कम? डेफिनेटली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रेस का रिलेशन, ओके. इतना कि वो आपके साइकिल्स को डेफिनेटली डिस्टर्ब करता है। ओके. Yeah. सो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आई मीन योगा इज़ देयर डेफिनेटली, व्हाट यू सजेस्टेड, तो योगा के अलावा और क्या क्या रखना चाहिए कि ताकि आपका स्ट्रेस कम हो?
पेरेंट्स ने उन्हें प्रेशराइज कम करना चाहिए कि नहीं आप भैया मुझे इसी डॉक्टर ही कॉलेज में बनना जाओ। है, अच्छा। एम्स में ही जाना है, आईआईटी में ही जाना है, कोई ज़रूरत नहीं। जिसकी जो कैपेसिटी है वो उस हिसाब से करेगा, जिसको जो बनना है वो उस हिसाब से करेगा। उन्हें प्रेशर मत दीजिए, ओके। उन्हें जैसा लगता है वो करेगा। आपका काम, पेरेंट्स का काम सिर्फ गाइड करना है। हिटलर बन के उन पे आप रोब नहीं झाड़ सकते। उनके मैच्योरिटी के साथ, उनके इंटेलेक्चुअल के साथ उन्हें जो करना है वो आप करने दीजिए। अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हुए बहुत से ट्रैक्स ओपन हो जाते हैं। पर्सनल लव लाइफ ट्रैक होता है, देन करियर का ट्रैक होता है, सेटलमेंट का प्रेशर होता है, मॉनेटरी टर्म्स की तरफ देखना पड़ता है, एंड देन फॉर कूल कल्चर वी हैव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ जाती हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम क्या होता है बॉडी पे, हार्मोन्स पे? सी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है ये पूरी दुनिया को पता है। स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, ये तो सबको ही पता है, राइट। लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्मोन पे क्या क्या है ये नहीं पता है। स्मोकिंग लीड्स टू ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी एंड अल्कोहल लीड्स टू एक्सेस ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीशन। तो ये दोनों साइड से कहीं ना कहीं हार्मोन पे तो इफेक्ट लाता ही है, जिसकी वजह से उनकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ओके, अब रही बात स्ट्रेस की, ऑब्वियसली लाइफ है तो स्ट्रेस तो होगी। एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, उनकी लव लाइफ का स्ट्रेस हो, आगे बढ़ने का स्ट्रेस हो, लाइक फॉर दैट दे कैन think of nutrition, proper nutrition. They can opt for yoga. They can have a good walk, morning walk, evening walk, whatever, जैसे उनको टाइम मिले. They can have a proper plan. जैसे आयुर्वेदा में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है दिनचर्या का. They can opt for that. इसके साथ साथ उनकी स्लीप, प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट 6 hours ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है. तो उनका दिन भर का जितना भी स्ट्रेस लेवल हो वो एक स्लीप से उनका कवर हो सकता है. सो आपने बताया कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज की डेट में जैसे बहुत लोग MNCs में जॉब कर रहे हैं, शिफ्ट टाइमिंग्स होते हैं, तो स्लीप जो है मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. इन सब का जो रिलेशन है या फिर इन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो वुमेन हेल्थ पे कैसे होता है? जैसे कि बहुत से कलीग्स हैं मेरे, पिछले कुछ दिनों से तो ये तो कॉमन चीज़ हो गई है कि PCOD, PCOS, तो ये बहुत सा कॉमन टर्म हो गया PCOD, PCOS. तो बेसिकली ये PCOD, PCOS होता क्या है? ओके, देखिए आपने जैसे बोला कि कुछ सालों से ये बहुत राइज हुआ है, जो कि बात बहुत सही है. पहले भी PCOS, PCOD हुआ करता था, लेकिन तब लाइफस्टाइल हेल्दी थी, प्रॉपर न्यूट्रिशन था, तो उसका प्रिवेलेंस कम था. बट जैसे अभी हमने बात की, ना फिजिकल एक्टिविटी है, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन है, स्लीप डिप्रिवेशन भी है, तो उस वजह से उनके हार्मोनल में इम्बैलेंस हुआ एंड दैट लेड टू राइज इन प्रीवेलेंस ऑफ PCOS. अब PCOS होता क्या है? सबसे पहले ये बात मैं बता दूँ, ये कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है. ये ज़्यादातर लोगों को समझ में आता ही नहीं है. अच्छा. क्योंकि इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़. तो इसमें ये प्रॉब्लम बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द ओवरीज. अच्छा. ठीक है. अब जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद शेडिंग होती है. तो PCOD में उनका ओव्यूलेशन ज़्यादा तो टाइम होता नहीं है. या तो उस वजह से सिस्ट बन जाते हैं. बिकॉज वो फॉलिकल रप्चर नहीं होता, अंदर इंसिस्टेड रहता है, तो वो सिस्ट बन जाते हैं. तो ऐसे उनके 2 months हो जाए, 3 months हो जाए, उनको पीरियड्स नहीं आती क्योंकि ट्रैप्ड है ओवम. तो उस वजह से सिस्ट बन जाते हैं. ओवरी में जब ढेर सारे सिस्ट बनते हैं तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं. इसके वजह से हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होते. उसके वजह से उनका वेट गेन होने लगता है. इज इट? या तो जब वेट गेन होता है तो अगेन जितना वेट गेन होता है उतना उसके ईस्ट्रोजन लेवल्स में चेंजेस आते हैं, तो उसका उतना ही फिर प्रीवेलेंस PCOD की सिवियरिटी में बढ़ जाता है. सो वेट गेन भी इसका एक साइड इफेक्ट या फिर उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट कह सकते हैं? सिम्टम कह सकते हैं कि वेट गेन होना. इनिशियल स्टेज में उन्हें वेट गेन होता है. इसके 3 क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, कि भाई मेरे साइकिल्स प्रॉपर क्यों नहीं है, क्या हो रहा है, तो इनिशियली उनके पीरियड्स या तो बहुत कम दिनों के लिए शेडिंग होती है. जैसे मैंने नॉर्मल साइकिल बताया था कि एटलीस्ट 3 to 8 days आर नॉर्मल, लेकिन उनमें वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए होता है. अच्छा. या फिर किसी को होता ही नहीं, जिसे हम अमेनोरिया कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली पहले उन्हें ये देखना है कि उनकी साइकिल्स कैसी है. सेकेंड, उन्हें
हिर्सुटिज्म नाम का एक सिम्टम है जहाँ पे उन्हें अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ दिखाई देती है. ओके. तो वो चेस्ट पे हो, हम्म. फेस पे हो, चीक्स पे हो, जैसे Okay. आदमियों को आती है वैसे ही फीमेल्स को आने लगती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. और तीसरा है कि यूएसजी में वो सिस्टिक अपीयरेंस दिखता है. अच्छा. वो एकदम नेकलेस के जैसे दिखता है. या ओके. तो दीज आर द 3 मेन क्राइटेरियाज जहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई अब इसे पीसीओएस होने वाला है. ओके. तो ये 3 क्राइटेरिया में से कोई 2 भी होगा देन वी कंसिडर कि शी इज़ हैविंग पीसीओएस. ओके मैम, आपने बताया कि वेट गेन होता है, तो वेट गेन के तो बहुत अलग रीज़न भी है आज की डेट में. जैसे अनहेल्दी ईटिंग हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, कोई वर्कआउट नहीं करता या फिर सिर्फ सिटिंग रहता है, तो वेट गेन तो होना ही होना है. लेकिन पीसीओडी पीसीओएस की वजह से वेट गेन हो रहा है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो वेट गेन तो होना ही है. करेक्ट. राइट. अभी वेट गेन को अगर आपको रिलेट करना है पीसीओडी के साथ तो वो जाएगा विथ इरेगुलर मेंसेस. यानी वेट गेन प्लस इरेगुलर मेंसेस होगा देन यू कैन कंसिडर कि ये वेट गेन है जो कि पीसीओएस से रिलेटेड ही है. अब रही बात अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो अब जितना जल्दी रिजॉल्व करो उतना अच्छा है. बिकॉज जब हम पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट भी प्लान करते हैं तो हम ये रिजिम्स उन्हें बना के ही देते हैं कि कैसी उनकी फिजिकल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वेट गेन इटसेल्फ इज़ अ बिग इशू, उस पर तो हम बाद में कभी बात कर लेंगे, बट उसे बैलेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओडी. ओके. हमारे डिस्कशन में आपने बहुत बार सिस्ट इस शब्द का उपयोग किया, तो और पीसीओएस का स्टार्टिंग भी पॉलीसिस्ट होता है, तो ये बेसिकली सिस्ट होता क्या है? देखिए, सिस्ट इज़ रिलेटेड टू ओवरीज. जब ओवरीज में सिस्ट फॉर्म होता है, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, गुब्बारा में जब हम पानी भरते हैं उसको लॉक कर देते हैं तो वो एक सिस्ट जैसा फॉर्म होता है, उसमें फ्लूइड है. राइट. गुब्बारे के अंदर पानी है तो वो फ्लूइड है. ओके. तो आप वही चीज़ ओवरी में समझ लीजिए. ओके. एक गुब्बारा है जिसमें फ्लूइड है. करेक्ट. करेक्ट. तो जब ये सिस्ट ढेर सारे बन जाते हैं तो हम उसे पॉलीसिस्टिक शब्द देते हैं. पॉली यानी ज़्यादा. ओके. तो ये सिस्ट ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, वो बर्स्ट होते हैं. वो बर्स्ट होते हैं तो उसके बाद वो उसमें से दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके. तो जब अगर ये सिस्ट फूटेंगे ही नहीं, वो इंसिस्टेड रहेंगे, अच्छा. इसकी वजह से हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा एंड इट विल लीड टू पीसीओडी. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है. Okay, so those balloons, Yeah. and that's what happened in the monthly cycles also. हाँ. Those balloons get bursted, and then you'll have hormonal changes, and then you'll get the periods. यस करेक्ट. जब वो Okay. बस्ट नहीं होगा तो वो सिस्ट फॉर्म जैसे ही रहेगा. तो ऐसे ढेर सारे सिस्ट ओवरी में रहते हैं. Okay, and all this balloon bursting जो आप कह रहे हो, ये मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, इसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट, वो बलून को बर्स्ट कराने के लिए भी हार्मोन्स चाहिए रहते हैं. हाँ हाँ. जिस वो हार्मोन पे स्मोकिंग और अल्कोहल एक्ट करता है, उसका इफेक्ट है. ओके. इसीलिए वो जितना आप अवॉइड करें उतना अच्छा रहेगा. Moving on to our next phase of life, people get married, and then there are a lot of things. So in terms of this pre-conceiving stage, people take decision of conceiving. तो ये pre-conceiving stage में एक वुमेन को क्या क्या, किस किस तरीके की, what all she should take care of? पहली बात तो ये करेंगे कि जो भी उनके बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग हो, अल्कोहल कंजम्पशन हो, वो उन्हें चेंज करें. ओके. कम्प्लीटली स्टॉप कर दें. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वो कैसे इफेक्ट करता है. करेक्ट. सी उसकी वजह से उनके पीरियड साइकिल है जो वो रेगुलर रहेंगे. दूसरी बात प्रॉपर न्यूट्रिशन. तीसरी बात रही फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उन्हें करनी चाहिए. स्लीप का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए. ओके. तो बेसिकली उन्हें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए. ओके. या एंड जैसे अब प्री कंसीव हो गया, अब कंसीव करते हैं मान लो, तो कंसीव इज लाइक 9 months जर्नी. यस. In this 9 months, at every trimester, what all care a woman should take, what all supplements she should consume, what all, like, what should be she taking care of? ड्यूरिंग 9 months ऑफ हर प्रेगनेंसी ड्यूरेशन उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहें. Okay. क्योंकि जिस जिस स्टेज पे उन्हें मिलना है उस स्टेज पे उन्हें
रेकमेंड किया जाएंगे चीज़ें. तो जब रिकमेंडेड स्कैन्स हो, ओके. रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स हो, बेबी की ग्रोथ के लिए हमें मोस्टली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स तो रिकमेंड करनी ही पड़ती है. तो उसका भी एक सर्टेन ड्यूरेशन है. तो वो कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो उनको सब्सिक्वेंट ओके. या So got your point. So अगर मान लो this is one set where you can have like complete 3 trimesters journey and all, but there are a lot of listeners who are facing issues for conceiving. या So what are the common reasons for not conceiving? राइट नाउ द कॉमन रीज़न इज़ एल्डरली प्रेगनेंसी. Okay. स्टडीज़ के वजह से, करियर के वजह से एक वो शादी लेट करते हैं. Hmm. आफ्टर 30s दे गेट मैरी, देन दे थिंक ऑफ किड्स अराउंड 35. तब तक ओवेरियन रिजर्व जो है, जिसे हम बोलते हैं कि लाइक एवरी फीमेल हैज़ अ सेट ऑफ ओवम. Okay. यस. तो वो धीरे धीरे कम होते हैं जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है. Okay. राइट. तो ऐसे स्टेज में उनके जो रिजर्व है वो कम होने लगता है. Okay. तो दैट इज़ द मेन इशू. जब रिजर्व ही कम रहेगा तो आगे प्रेगनेंसी कैसी होगी. You mentioned something as Shatavari is eudotronic. So, and also you mentioned that WHO calls it eudotronic, certifies it as eudotronic. But basically, what is eudotronic? यूट्रोटॉनिक मीन्स जो यूट्रस के लिए हेल्दी हो, दैट Okay. इज डिफाइंड एज यूटेरोटॉनिक. Okay. 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 या And when WHO certifies it, they go through a process like some clinical trials and all. या ऑफ कोर्स क्लिनिकल ट्रायल्स होती है. उसके बाद दे डिसाइड वेदर इट्स गुड और नॉट, एंड देन वी रिकमेंड इट. So there are a lot of if WHO is certifying it, we can say there are a lot of literature available out there which certifies that Shatavari is eudotronic. डेफिनेटली यस. Okay. So अब ये तो कंसीव करने के लिए अवेलेबल है, बट इवन आफ्टर दिस इफ सम कपल्स आपके पास डेफिनेटली आते होंगे कि दे आर नॉट एबल टू कंसीव, इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस कपल्स को क्या करना चाहिए? देखिए, कंसीव ना होने के कई सारे रीजंस हैं. सो सबसे पहले तो उन्हें इवैल्यूएट करना होता है कि ये कंसीव क्यों नहीं हो रहे. ओके. या तो उनका रिजर्व कम है, या तो उनका यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, या तो उनके ट्यूब्स ब्लॉक है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है. ओके. यस. ये सारी चीज़ें है कि नहीं, पहले वो हम इवैल्यूएट करते. अगर ये चीज़ें भी नहीं तो क्या उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओके. एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम है. वो इवैल्यूएट करने के बाद वी डिसाइड कि उन्हें अभी क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए. ओके. जैसे अभी मेजर कंसर्न ट्यूबल ब्लॉक्स है, तो उनमें शिवलिंगी नाम का एक हर्ब है जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है. ओके. इट लिटरली रिमूव्स द ट्यूबल ब्लॉक्स. ओह, सो हाँ. तो ट्यूबल ब्लॉक्स दो तरह से हो सकते हैं. या तो वो एनाटॉमिकल होगा, जो पहले से ही क्रुकेड हो, ऐसा होगा. या तो फिर कोई पैथोफिजियोलॉजी होगी जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ उनको. ओके. तो ऐसी चीज़ों में शिवलिंगी वर्क्स वंडर्स. वो पूरा इन्फेक्शन क्लियर करके पूरा ट्यूब ब्लॉक को हटाता है. Wow. Yes, So and these herbs which are Yeah. naturally there, they can take care in those complex situation also. डेफिनेटली. Okay. So moving on to the next part is definitely once the conceiving has been done, and there is those 9 months to take care of the baby and mother. What kind of say supplements would you recommend, or what is your general suggestion to take care for the mother and the baby? See, the basic supplements are iron and folic acid Okay. with calcium supplements. With calcium. Okay. Yeah. Why calcium is important at that stage? सी बेबी की ग्रोथ होती है, बेबी के भी बोन्स डेवलप होते हैं. Okay. तो फॉर दैट रीज़न कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Okay. सो मदर का जितना डेली कंजम्पशन है कैल्शियम का उतना इनफ नहीं है. दैट्स वाई वी रिकमेंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स. Okay. Yeah. Okay. So I was discussing with you earlier, saying that you said ki from the day one when the conceiving happens, a mother has to drink milk, cow's milk till end of that. So why milk is important for the conceiving part? I mean, once the conceiving has been done in that pregnancy part. सी क्योंकि कैल्शियम का मोस्ट ऑफ द
सोर्स मिल्क ही है. Okay. दैट इज़ वाई मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Oh. या इन आयुर्वेदा ऑल्सो सेज कि कंज्यूमिंग मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले के ज़माने में कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं थे. Okay. Okay. तब मिल्क ही था. मिल्क वॉज द ओनली सोर्स. Oh. इसीलिए वी रिकमेंड मिल्क. Okay. So that's the reason the calcium is. I mean, the milk is important Yeah. because of the calcium in Yes, it. yes, because of calcium. Okay. Okay. And other so you said about calcium, you said about iron, folic acid. Yeah. In terms of in those 9 months, one has to take care. Anything more the mother should take care of? यस, abnormal वेट गेन. यहाँ पे भी वेट गेन होता है, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा हो इट विल लीड टू जेस्टेशनल डायबिटीज़, और उन्हें थायराइड का भी डर रहता है, और हाइपरटेंशन यानी उनका बीपी भी बढ़ता है. तो Okay. ये 3 चीज़ें मेन हैं, राइट? डायबिटीज़, थायराइड एंड हाइपरटेंशन. ये तीनों पे खास ध्यान रखना है. So ये जेस्टेशनल डायबिटीज अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? डाइट पे कंट्रोल रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. Okay. And एंड सब्सिक्वेंट टेस्ट, जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम कुछ टेस्ट रिकमेंड करते, बस वो फॉलो करते रहना है, दैट्स इट. and you also mentioned touched upon the abnormal weight gain. या How do you quantify that abnormal weight gain? सी पूरे प्रेगनेंसी में ना मिनिमम 10 kgs वेट गेन होता है. Okay. Okay. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ 1 kg गेन होता है, एंड सेकेंड एंड थर्ड में इट गोज टू अराउंड 3 एंड ऑल दैट Okay, स्टफ. okay. या तो अगर उससे ज़्यादा वेट गेन होने लगे तो फिर चिंता करने की बात है. अदरवाइज इट्स ओके. दैट इज़ वाई वी चेक वेट एंड बीपी फॉर एवरी विजिट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. And I mean, the woman can take ashwagandha and all in the pregnancy also to to manage the stress and BP related She things. can take. There's no harm in that. Yeah. Okay. Okay. So your calcium and everything is important. So once the baby is delivered, there's this phase, a difficult phase with a lot of people say, because I've heard a lot of mothers, like new mothers, they go through something called postpartum depression. Yeah. So Postpartum psychosis, yes, right. postpartum thing. So postpartum में ऐसा मतलब क्या hormonal change होते हैं, क्योंकि there's huge change, like as they say कि it's the second life, it's the second birth of a woman when they Yes, deliver a yes, baby. yes, right. Your first birth is when you come, and then your second birth is when you deliver a baby. Yeah. So it's a new life. Yeah. So you have a new yourself and a new baby also. So what kind of care a newborn mother, I mean a new mother should take? See, a postpartum psychosis, it's like कि उनके हिसाब से, मतलब उन्हें लड़का चाहिए, लड़का नहीं होता है, लड़की होती है. Okay. तो दैट इज़ द मेन रीज़न वो साइकोसिस में जाते हैं. सो इन दी जैसे पोस्टमार्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आजकल बहुत से केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद बहुत से लोगों में थायराइड आ जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? थायराइड के लिए मैं डायरेक्ट रिकमेंड करूँगी एक हर्ब विच इज़ कांचनार. ओके. कांचनार गोज़ वेरी वेल विथ थायराइड. जो भी ग्लैंड की अगर वो हाइपो हो, हाइपर हो, जो भी है, जो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, तो कांचनार एक ऐसा हर्ब है जो थायराइड को रेगुलाइज करने में हेल्प करेगा. ओके. Yeah. ओके. Cool. So now we will move on to our next phase, which is now we have covered the teen, the 20s and 30s. Now we'll jump on to 30 to 40. So in Yeah. 30 to 40s, there are like, because the babies have been delivered, there could be 1, 2, 3 babies, and then उसके बाद क्या होता है, मतलब there are a lot of complaints about like some discharges, some fluids which Yeah. gets, and they're not able to control those fluids, or I mean no. So what kind of fluids, is it normal to have fluids? If it's like, how do we understand, how the listeners understand what is normal and what is abnormal fluid discharge? यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. बिकॉज बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल होता है. Okay. अब वो नॉर्मल से अबनॉर्मल कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? सिंपल. जब ओव्यूलेशन होता है, अब ओव्यूलेशन कब होता है? ऑन 14th डे ऑफ Okay. पीरियड्स. Yes. बट बेसिकली इट्स लाइक बिफोर 14 days ऑफ अनदर साइकिल.
तो उसे काउंट करना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी का साइकिल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो आप मिड साइकिल में कंसिडर कर सकते हैं, जब ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब उन्हें वाइट डिस्चार्ज होता है, विच इज़ नॉर्मल। वाइट डिस्चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक वाटरी डिस्चार्ज होता है, ओके जिसका कोई फाउल स्मेल नहीं होता, जो नॉन इरिटेंट होता है, ओके उससे कोई इरिटेशन नहीं होती, स्मेल भी नहीं होता है, और वाटरी कलर का होता है। दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ फाइन। ओके अब अबनॉर्मल सेम, जिसका फाउल स्मेल होगा, ओके जिसका कलर येलोइश ग्रीनिश थिक कर्डी होगा, ओके और जो इरिटेंट भी होगा। ओके दैट्स इट। तो ये है नॉर्मल और अबनॉर्मल डिस्चार्ज। ओके इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक इन्फेक्शन हो सकता है, ओके दूसरा सर्विक्स है। सर्विक्स का मैं आपको बताऊँ तो जो यूट्रस है उसकी जो ओपनिंग है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। वहाँ पे कोई इंजरी हो तो उस वजह से डिस्चार्ज होता है, ओके राइट। तो ये दो मेन है रीजंस। अच्छा। सो और इसके लिए कोई हर्ब ऐसा है विच विल से कि ये डिस्चार्ज के लिए यू कैन हैव दोज काइंड ऑफ हर्ब्स? या लाइक हिबिस्कस इज़ डूइंग वेरी वेल। ओके या और जब वजाइना का पीएच मेंटेन नहीं होता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया है, ओके वहाँ पे भी जब पीएच मेंटेन नहीं होता है तब डिस्चार्ज के प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की भी कुछ वजाइनल पेस्टरीज अवेलेबल है मार्केट में। ओह उसके वजह से पीएच मेंटेन होता है और डिस्चार्ज की कंप्लेंट कम हो जाती है। सो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स आल्सो हेल्प्स इन या बट वजाइनल पेस्टरीज, बट नॉट ओरली। ओके Yeah. ओके सो दे आर They will act locally. They will अच्छा। act directly to the point. Yeah. अच्छा अच्छा Yes. okay so these are the some I mean and then obviously in that phase every woman will need multivitamins and other supplements also like iron, folic acid also is required in this phase or like No, there's no need of any other supplements for Okay. vaginal discharge. अच्छा Yeah. okay Certain herbs are fine. okay Yeah. now once everything is done and we move from 40s and then woman enters 40s and in their 50s Yeah. now there are a lot of news which comes in like there's early menstruation and early menopause also. Yeah. So this early menopause, late menopause, exact what is menopause? First question is what is menopause? मेनोपॉज एक ऐसा टर्म है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे वुमेन का जो पीरियड्स, उसे जो रेगुलर मंथली पीरियड्स आते थे वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है फॉर 1 year। Okay. हाँ, तो पूरा 1 साल तक उन्हें एक भी पीरियड नहीं आना चाहिए। देन वी कैन कंसिडर कि शी हैज़ अटेंड हर मेनोपॉज। Okay. ओके, अगर उसे 2 महीने में पीरियड्स आए, 6 महीने में पीरियड्स आए, 8 महीने में पीरियड्स आए, तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज मेनोपॉज। Okay. वो पेरी मेनोपॉज हो गया, वो क्लाइमेट्रिक चेंजेस है। Okay. ओके, तो अभी रिसेंट अर्ली मेनोपॉज के बहुत केसेस आ रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि एक लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उसके वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स स्टार्टिंग से ही कम होने लगते हैं। मोस्ट पीपल आर कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड सिगरेट स्टफ एंड ऑल दैट। उस वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लगते हैं। तो जब वो लेवल्स कम होने लगते हैं तो इधर मेनोपॉज का जो अर्ली सिम्टम्स है वो स्टार्ट होने लगता है। Okay. यस। So menopause so is there any age defined or like is like 45 50 is the Yes, normal yes. age to start menopause or नॉर्मल एज मेनोपॉज का है 45 से 55, एवरेज बिंग 50। okay okay या एंड अर्ली मेनोपॉज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 40। okay so this menopause is basically a very difficult phase. So what all hormonal changes, what all bodily changes happens in this menopause phase? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जहाँ पे महिलाओं को उनको खुद को ही नहीं पता चलता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, वो ये क्या होता है? हाँ, क्योंकि जो बॉडी में चेंजेस है उन, जैसे कि हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब सडन उन्हें गर्मी लगती है। Okay. रात में उनको स्वेट सडन होने लगते हैं। भाई एसी चालू है फिर भी उन्हें स्वेटिंग होती है। अच्छा तो उन्हें नहीं पता रहता है कि ये भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंग्जाइटी, डिप्रेसिव मूड होता है। हाँ। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ करते हैं, okay छोटी छोटी बात पे नोकझोंक करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगती है जो उन्हें नहीं पता रहती है। okay इस पे एज सच इतनी बात नहीं हुई है आज तक, इसलिए उन्हें कोई आइडिया ही नहीं रहता कि उनके साथ हो क्या रहा है। okay और ये फेज़ बहुत लंबा चलता है। ज़रूरी नहीं कि 1 साल में ही ये फेज़ कंप्लीट हो जाए, 2 साल में कंप्लीट हो जाए।
इट मे लॉन्ग टिल 12 years ऑल्सो. मतलब अगर किसी को 1 साल में 2 बार पीरियड्स आए, फिर भी उन्हें सारे सिम्टम्स जो मेनोपॉज के हैं, हॉट फ्लशेस हो, नाइट स्वेट्स हो, डिप्रेसिव मूड हो, स्लीपलेस नाइट्स हो, उनको नींद भी अच्छी से नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें लंबे अरसे तक चलती रहती है. इस 12 साल की जो मेनोपॉज की फेज है, Yes, 10 मतलब to 12 it years depends on yeah. every woman. किसी का 1 साल में ही हो जाता है, किसी को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है, लेकिन किसी को बहुत करना पड़ता है. तो अगर कोई मान लो बहुत फिजिकली फिट है, हेल्दी एक्टिव है, तो उनका मेनोपॉज का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, 1 साल में ही हो जाएगा. अगर कोई अनहेल्दी है तो वो ज़्यादा लंबा रहेगा. नहीं, वैसे ऐसा जितना कुछ इशू नहीं होगा हेल्दी अनहेल्दी से, क्योंकि वो पूरा रिलेटेड टू हॉर्मोन्स ही है. अच्छा, या ये मेनोपॉज के इन द फेज ऑफ मेनोपॉज ऐसे कुछ चीज, मतलब दूसरे बॉडी पार्ट पे भी इम्पैक्ट होता है, जैसे कि आपके हो सकता है गट, हार्ट, माइंड. हाँ, यस, बिल्कुल. बोन्स पे होता है ओके. और हार्ट पे भी होता है. अब बोन्स पे कैसे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है. वो कैल्शियम बोन्स में से अब्जॉर्ब करने लगता है बॉडी, तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ब्रिटल बोन्स होते हैं, my फ्रैक्चर जल्दी होता है. आपने भी देखा होगा बहुत सारे दादा दादी हाँ, गिरती है, फ्रैक्चर हो जाता है. Yes. थोड़ा कुछ हुआ तो फ्रैक्चर हो जाता है. Yes. उनके बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं. ओके. ओके. और रही बात हार्ट की, तो अभी हार्ट का ऐसा सीन है कि ईस्ट्रोजन जो है उसका मेन फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना. गुड कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है. ओके. राइट. जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो कोलेस्ट्रॉल का डिसबैलेंस होता है. ठीक है. लिपिड प्रोफाइल का वो डिसबैलेंस होने की वजह से वो सारा जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो डिपॉजिट होता है हार्ट के आर्टरीज में. ओके. ओके. ब्लॉक होता है और फिर उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होते हैं. ओके. तो ये केसेस रेयर है लेकिन होते हैं. तो ये बेसिकली ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं मेनोपॉज के. ओके. सो मेनोपॉज ऐसा फेज है कि जहाँ पे यू आर एजिंग यस, एंड एट द सेम टाइम डीजेनरेशन होता है, तो डीजेनरेटिव चेंजेस दिखाई देते हैं. करेक्ट. So if our listeners want to age gracefully, then they should definitely take care of their menopausal Yes, period. definitely. They should also take care of their heart, because it has a direct correlation Yes, yes, with the yes. heart and other things, and also the osteoporosis, brittle bones जो हो रहे हैं. Yes. So this is all, but the root is your menopause, Yeah. the hormonal changes which is happening. Yeah. That's interesting. So what kind of remedies, what kind of herbs, what kind of things would you recommend for the people who are there in those menopause phase for like 5-6 years? See, जैसे कि अगर मान लो कोई है और 3 महीने से साइकिल्स नहीं आए, 6 महीने साइकिल्स नहीं है, तो उन 6 महीने में उनको क्या करना चाहिए, या फिर जब आते हैं तो कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, जब हमारी बॉडी खुद से कुछ बनाती नहीं है तब हम बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं. राइट. करेक्ट. तो ईस्ट्रोजन्स की कमी होने की वजह से हम बाहर से ईस्ट्रोजन्स ले सकते हैं. फाइटो ईस्ट्रोजन्स एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन्स कंज्यूम कर सकते हैं. फाइटो ईस्ट्रोजन. या ओके. तो उससे कुछ हद तक लेवल्स हम बना सकते हैं. ओके. तो उससे उनके सिम्टम्स थोड़े तो कम हो ही सकते हैं. तो फाइटो ईस्ट्रोजन्स मोस्टली आपके डेट्स में मिलता है, खजूर, ओके. शतावरी में भी है, अश्वगंधा में भी है, काफ़ी हद तक है. इंडियन स्पाइसेस में भी बहुत सारे फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं. तो दैट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प वुमेन फेसिंग मेनोपॉज. और इसका मेन ट्रीटमेंट एक्चुअली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है. मतलब सीधा टैबलेट्स दो, पैच लगाओ, हार्मोन्स के पैच लगाओ. अच्छा. हाँ, बट उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ओके. तो बेटर कि वी स्टार्ट विथ फाइटोएस्ट्रोजेंस. जैसे ही मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है आप फाइटोएस्ट्रोजेंस लेना स्टार्ट कीजिए. दैट विल हेल्प टू सम एक्सटेंट. So phyto is basically plant. Yeah, plant based estrogens. Plant based estrogens. Yes. Okay. So what you are recommending is plant based are always, in most of the times it's always safe to consume plant based things. Yeah. Okay. Even soybean has a good amount of phytoestrogens. Oh, soybean also has the So you phytoestrogen. can have soya milk, any soya products, everything But will go. one thing which I have read on a lot of soya milk and all, the actual amount of soya milk in that is in single digit percentage. If suppose 100 ml का कोई sip है, तो it will have only 7 to 8 ml thing. So in that case our supplements become very important Yeah, for us to have those supplements Definitely. in that.
recommended dietary allowance, RDA, Yes. we should follow those things. So Yeah. supplements comes handy for us. Yes, So definitely. that's one thing. When you mentioned about the phytoestrogen or phyto thing, there are a lot of players or a lot of products available out in the market, which claims saying that they are phyto. But I just want to understand, if suppose there is a plant ashwagandha, so what part of the plant we should consume? Say ashwagandha is there, shatavari is there. There are other plants which are having like shivlingi, putrajivika you mentioned about. So which part of the plant is important for us? Where do we get that phytoestrogen? See, every plant has its यूजफुल पार्ट अलग से डिफाइंड ऑलरेडी. Okay. किसी का रूट है, किसी का लीफ है. Okay. तो जिसका रूट है उसका आप लीफ लेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं. Okay. या Okay. जिस प्लांट का रूट रेकमेंड किया है उसका रूट ही लेना है. जिस अच्छा. प्लांट का लीफ बोला है तो उसका लीफ ही लेना है. जिसका फ्लावर बोला है तो फ्लावर ही लेना है. उसमें Okay. कोई दो राय नहीं है. Okay. So Okay. that is important. Okay. Every plant has its different useful part. Yeah. और ये जो प्लांट है, जैसे कि मान लो अश्वगंधा का रूट, आपने कहा कि रूट मेंशन किया हुआ है, तो अगर अश्वगंधा रूट को हम लेंगे तो देर आर लॉट ऑफ स्टडीज़. देर समथिंग विच न्यू थिंग इज कम अप इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी. वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी इन अदर स्पेसिस, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नैनो टेक यूज़ होता है और नैनो कार भी है. वैसे नैनो तो बहुत सुना है, लेकिन मेडिकल साइंस में या फिर आपके हिसाब से व्हाट इज़ एग्जैक्टली नैनो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फाइटो एक्सट्रैक्ट्स और इन टर्म्स ऑफ प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स? सी नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं एक बताती हूँ आपको. जैसे कि हम कोई प्लांट कंज्यूम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके सारे मॉलिक्यूल्स आप डाइजेस्ट कर पाओ. ओके. सो यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी जो पार्ट डाइजेस्ट होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, हम बस उतना ही पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से. ओके. तो अगर उतना ही प्लांट से आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो एम्पल अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करोगे, उसका क्वांटिटी सही से होगा जितना बॉडी के लिए चाहिए उतना. You mentioned about phyto extracts and phyto thing. There's this new concept, new thing which is coming as nanotechnology. Nano, we all have heard a lot of times in space, in other sectors. But how this nano thing is coming in the supplement thing? Can you please throw some light on the nano part? ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ. Okay. जैसे घर में हल्दी होती है, राइट? उसे हम सब्जी बनाते हुए कभी भी रॉ हल्दी यूज़ नहीं करते. Yes. करेक्ट. Yes. ना उससे कलर आएगा, ना टेस्ट आएगा, ना कुछ भी होगा, राइट? तो हल्दी को हम पीस के ही लाते हैं, करेक्ट. हम उसे मिक्स करते हैं, बराबर टेक्सचर आता है, जो भी टेस्ट आता है, करेक्ट. तो ऐसे ही अपनी बॉडी की एक खूबसूरती है Okay. कि वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल को एडजस्ट नहीं करता है, वो उसे एक्सपेल आउट करता है. जो उसे लगता है वो उसे रख लेता है, करेक्ट. Okay. तो ऐसे ही जब आप ये फाइटोइस्ट्रोजेंस की जैसे मैंने बात की, वैसे कोई भी अगर आप फाइटो पार्टिकल्स को नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो ईजिली आपके बॉडी में एक्सेप्ट होती है. आपका ब्लड उसे ईजिली एक्वायर करता है और वो अपने टारगेट पे जाके अपना हेल्दी बेनिफिट दिखाता है. Okay. यस. So. तो दिस इज़ हाउ नैनो टेक्नोलॉजी वर्क्स Okay. बेसिकली. So the nano is the new big thing in terms of this supplement world. Yes, you can say it. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much, Dr. Snehal, for being here. Thank you. Thank you so much.